ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਪਾਲਨਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਭ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਚਾਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਕਿਸਾਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਪ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੱਥਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ पत्थर की मूर्त की तरह है साहिब, चोट पड़ने से ही तराशी जाती है। ये जिंदगी पत्थर की मूर्त की तरह है साहिब, चोट पड़ के ही तराशी जाती है। जिस चीज की कीमत कोई नहीं होती वो गुम हो जाए तो नहीं तलाशी जाती है। ये समझना जरा सारे ने। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਤਲਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਗੁੰਮ ਗਈ, ਫਿਕਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਾਲੀ ਗੁੰਮ ਜਾਵੇ, ਹੱਥ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਗੁੰਮ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਗੁੰਮ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਵਧਾਓਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਖੂਬੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਡਾਊਨ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ। क्योंकि जो खुद को तराशता है, जो खुद को तराशता है फिर जमाना उसको ही तलाशता है। ये समझना जरा सारे। जिहड़ा अपने आप नूं तराशण नूं तैयार है, मेहनत करन नूं तैयार है, फिर दुनिया ते तलाश भी जरा सोच के देखो। अज बंदे नूं हर जगह तलाश हुंदी है कि जे मैनूं हलवाई चाहिदा तां अच्छा चाहिदा है, कुक चाहिदा घर दे विच अच्छा चाहिदा है, ड्राइवर चाहिदा है अच्छा चाहिदा है। यानी हर पासे ओदी ही तलाश हुंदी है जिन्हें अपने आप नूं मेहनत करके बेटर बनाया होवे, अच्छा बनाया होवे। इसलिए सब तो पहला पॉइंट, क्योंकि अज सत्संग दे विच ना असीं कुछ चीज़ां नूं समझ के सीख के जाना है कि अगर अपने जीवन की वैल्यू बढ़ानी है तो यह ना कहो मैनूं इन्हां नहीं पुछया, मैनूं उन्हां नहीं पुछया, बल्कि ये देखो मैं अच्छा की कर सकदा हाँ, मैं अपने आप को अच्छा किद्दां बना सकदा हाँ, अपनी बोलबाणी च किद्दां बदलाव कर सकदा, अपनी बोलबाणी नूं किद्दां सुधार सकदा हाँ, अपनियां आदतां नूं किद्दां अच्छा बना सकदा हाँ। क्योंकि जिन्ना तुसीं अपनी बोलबाणी नूं, अपने सुभाव नूं, अपनियां आदतां नूं अच्छे करदे जाओगे, उन्नी दुनिया तुहाडे नाल जुड़दी चली जाएगी, उन्नी दुनिया दीयां नज़रां ही तुहाडी वैल्यू कह दिओ। हुण चैक कर लो ना कि वैल्यू ਵਧਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਰਾਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ कि मैं
इस दुनिया ते बेहतर बनने वास्ते आया हाँ, कुछ अच्छा करने वास्ते आया हाँ, और अच्छा करन दी आदत मैनू अज तो ही बनानी पैनी है। बोलो समझ दियो कि नहीं? इसलिए अब सुन लिया, समझ लिया, जान लिया। अब सुन लिया, समझ लिया, जान लिया, मेरी सारी बुराइयों का अंत आज होगा। हुण सुन लिया ना, समझ भी लिया, जान भी लिया, तो हुण अपने आप नाल एक वचन करो, फिर गल नूं अगे लैके चलांगे कि जिन्नियां भी मेरे अंदर बुराइयां है, जिन्नियां भी मेरे अंदर बुरियां आदतां है, जिन्नियां भी मेरे अंदर कमियां है, अज मैं एक वचन करके अपने आप नाल जाना है कि मेरी हर कमी दा, हर बुराई दा अंत अज होना है। अज तो मैं अपने जीवन च बदलाव लियाना है। जे मैनू बुरा बोलने की आदत है तो अज मैं अपने आप नाल वादा करना कि अपनी बुरा बोलने की आदत का अज अंत करना है, यानी इनू खत्म करना है। अगर मेरे जीवन च कोई बुरी आदत है, कोई नशे की आदत है, गाली गलोच की आदत है, नफरत की आदत है, किसी की निंदा करने की आदत है, कोई भी मेरे अंदर कमी है, अगर मैं अपनी वैल्यू दुनिया दी नज़रां च अपने मालिक परमात्मा प्रभु दी नज़रां च अप करनी है, तो अज मैनू अपनी इन्हां बुरियां आदतां दा एंड कह दिओ। इसलिए की तुहाडे अंदरों आवाज आनी चाहिए है, तुहाडे वालों कह रहे हैं, तुहाडे अंदरों आवाज आनी चाहिए है। सुन लिया, समझ लिया, जान लिया है। सुन लिया, समझ लिया, जान लिया है, मेरी सारी बुराइयों का अंत आज होगा। मेरी सारी बुराइयों का अंत आज होगा। जो मिटा देता है अपने अंदर की बुराइयों को, उसके सर पर ही कामयाबी और खुशियों का ताज होगा। खुशियां का ताज चाहिए ना जीवन च, क्योंकि बादशाही ताज तो सारे को होंगे है, पर वो सोने के ताजा नूं की करना जे अंदर खुशी नहीं है जीवन च, जे जीवन च आनंद ही नहीं है, जे जीवन च शांति नहीं है। इसलिए तो आंदा ना, सगल श्रेष्ठ का राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। वो कहते ये दुनियावी ताजा नाल, तख्तां नाल खुशी नहीं मिलती। बड़े बड़े राजे महाराजे भी रोंदे गए दुनिया तो। सिकंदर वर्गियां दी तो कई बार ऐसी गल की है कि सिकंदर पूरी दुनिया का सम्राट होके भी अंत वेले खाली हथ रोंदा होया दुनिया तो चला गया। सो जे बंदा सोचे कि ये तख्ता ताजा नाल मैनू खुशी मिलनी है, तो फिर सिकंदर वर्गे ना रोंदे, फिर बड़े बड़े राजे महाराजे ना रोंदे। इसलिए याद रखो, जे जीवन च खुशियां दा ताज चाहिदा है, कामयाबी दा ताज चाहिदा है, तो यह ताज उन्हां दे सिर ते हुंदा है जेड़े अपने अंदर दियां बुराइयां नू खत्म, मेरे अंदर की बुराइयों का अंत आज होगा, तभी मेरे सर पर कामयाबी और खुशियों का, कामयाबी और खुशियों का हुण ताज चाहते हो कि नहीं? या हाय हाय रोंदे रोंदे दुखों के विच ही जिंदगी जीना चाहते हो? तो फिर ताज चाहिए है, तो खुशी और कामयाबी का ताज फिर कमांगे। ये ना सोचो कि परमात्मा मैनू किसी अमीर घर च पैदा कर दिंदा, राजे महाराजे के घर च पैदा कर दिंदा। जेड़े इदां दी सोच रखण वाले है ना, वो जीवन च कदी कामयाब नहीं हुंदे। जेड़े अपने अंदर दी बुराई नू जित के अपने अंदर गुण पैदा करते हैं, फिर हुण जरा गौर करना, फिर की हुंदा है कि वो गरीब तो गरीब, या जिन्हां नू बचपन च खाण नू रोटी नहीं मिलती सी, वो भी एक दिन कामयाबी दी बुलंदियां ते पहुंच के दुनिया नू दिखा दिंदे। इतिहास में ऐसियां कई घटनावां तुसीं देख सकते हो। जे दुनियावी तौर पर भी लईए ना, स्टीव जॉब्स या ऐसी बिल गेट्स की गल करिए, वॉरेन बफे की गल करिए, या अपने राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी की गल करिए, बचपन च अखबारां बेचते सी अब्दुल कलाम, पर बने की मिसाइल मैन, देश के राष्ट्रपति। सो उन्हां दी सोच की सी? वो ये रोना नहीं रोंदे सी कि हाय मैं गरीब के घर पैदा हो गया, जे मैं अमीर के घर पैदा हुंदा मैं भी कुछ कर दिंदा, ये मैं किसी राजे महाराजे के घर पैदा हुंदा तो मेरी जिंदगी वधिया हुंदी। उन्होंने ये नहीं देखा मैं पैदा कित्थे होया है, उन्होंने ये देखा है पैदा मैं जिथे मर्जी होया हां, पर मैं बेहतर की कर सकता है, और मैं अपनी तकदीर नू, अपनी वैल्यू नू, अपनी तकदीर नू किद्दां बदल सकदा, अपनी वैल्यू नू किद्दां बदल सकदा, किद्दां मैं कख तो लख तक पहुंच सकदा है। उन्होंने अपने आप नू बेहतर बनाने ते जोर दिता। अगर अज तुसीं भी फैसला कर लो, ये हालात दे रोने रोने बंद करिए, समझदे हो कि नहीं? स्थितियां दे रोने रोने बंद करिए, मेरे हालात माड़े, वो नहीं मेरा साथ दे रहा, वो नहीं मेरा साथ दे रहा, इदां दे रोने रो के तुसीं जीवन च कदी कामयाब
नहीं हो सकते। बस तुसी फैसला कर लो कि कोई होर कुछ करे ना करे, कोई होर मेरा साथ देवे ना देवे, पर करन वाला, मेरा साथ देने वाला मेरा मालिक, मेरा परमात्मा मेरे नाल है। मेहनत मैं करनी है, रहमत उसने करनी है, मैनू कामयाबी जरूर, कामयाबी जरूर। हुण कामयाब होने तैयार हो कि नहीं तुसी? और ये वैल्यू बननी किद्दां है, जरा हुण गौर करना। इसलिए ये जिंदगी पत्थर की मूरत की तरह है साहिब, जरा हुण गौर करना है। जिंदगी तो पत्थर की मूरत की तरह है। एक पत्थर ते जदों चोट पैंदी है फिर ही उहदे अंदरों मूरत प्रगट हुंदी है। और चोट पैण दा मतलब की है? दर्द नूं सहना, पीड़ा नूं सहना। जो हर प्रकार के दर्द नूं सहण नूं तैयार है, जो हर तरह की मुश्किल का सामना करने नूं तैयार है, जो हर तरह की पीड़ा झल्लण नूं तैयार है, फिर उहदी जिंदगी पत्थर तो भगवान की मूरत बन के निकलती है। और फिर जिधर भी वो जाता है दुनिया उन्होंने सलाम कर दी, उहदे अगे हथ जोड़ दिंदी है। पर उहदे वास्ते चोट, पर बंदा की कहता, रब्बा कोई मुश्किल ना आवे, जीवन च कोई तकलीफ ना आवे, जीवन इन्ना आसान कर दे कि जीवन च कोई प्रॉब्लम ही ना आवे। तो जरा सोचो जे पत्थर यही गल भगवान नूं कहे कि हे भगवान कदी मेरे ते कोई सट ना बजे, कदी मेरे जीवन च कोई चोट ना पवे, मैनू सेफ रखी, मैनू बचा के रखी, कदी मैनू मुश्किलों का सामना ना करना पवे, तो फिर पत्थर की बनेगा? जवाब तुसी देना है। उसकी मूर्त बनेगी, वो किते पूजा के लायक बनेगा, किते उन्होंने वैल्यू मिलेगी? ये गल याद रखो, वैल्यू बढ़ाने वास्ते और जमीन तो अर्श तक पहुंचने वास्ते सानू मुश्किलों च गुजरना पैना है। हर तरह की चोट बर्दाश्त करनी पैनी है, हर तरह की मुश्किल का सामना करना, क्योंकि मजबूत और बहादुर वही हुंदा है जिहड़ा मुश्किल तो डरदा नहीं है, जिहड़ा चोटां तो डरदा नहीं है, बल्कि कहना मार चोट, तू चोट मारेगा, तेरी चोट बजेगी तो फिर की होएगा? जिद्दां सी एक शेर कहीदा है कि कमजोर पत्थर पर चोट पड़ी तो टूट कर कंकर कंकर हो गया, और मजबूत पत्थर पर चोट पड़ी तो वो भोले शंकर हो गया। एक वो पत्थर जो कमजोर सट पई कंकर कंकर हो गया, एक दूसरा पत्थर उत्ते मूर्तिकार ने सट मारी तो ओदे अंदरों भगवान दी मूर्त प्रगट हो गई, और वही पत्थर भोले शंकर हो गया, फिर उसकी पूजा होने लगी। सो तुहाडे अंदर भी किते ना किते वो भगवान की मूर्त छुपी हुई है, पर तुसी प्रगट नहीं होने दिंदे। क्यों नहीं होने दिंदे? क्योंकि तुसी सट्टां सहण नूं, मेहनत करन नूं, दुख झल्लण नूं तैयार ही नहीं हो। माड़ी जी पीड़ा आंदी है तो असीं हाय हाय करके रोना शुरू कर दिंदे हैं। तो जिहड़े बहादुर हुंदे हैं वो दुखों दर्दां की परवाह नहीं करते, वो कहंदे दर्द आएगा सानू होर मजबूत बना के जाएगा। समझदे हो कि नहीं? की कहना? दर्द आएगा सानू होर मजबूत बना के जाएगा। और जेड़ा समझदार होएगा ना वो दर्द तो कदी नहीं घबराएगा। समझदे हो कि नहीं? वो दर्द दे विच भी दुनिया नू कुछ करके दिखाएगा, अपने जीवन की वैल्यू बढ़ाएगा और फर्श तो अर्श तक पहुंच के दिखाएगा। हुण तुसीं सोच लो दिखाना है या मिट्टी होके जाना है? की करना है तुसीं? ये फैसला लेना तुसीं कि तुसीं दिखाना है कुछ करके दुनिया नू, या फिर मिट्टी चो पैदा होए। जिदा बंदा कहना मिट्टी चो पैदा होए, मिट्टी च मिल जाना, वो ठीक है, मिट्टी चो पैदा होए हैं, मिट्टी च मिल जाना। पर ये जिंदगी इसलिए नहीं रब ने दी कि मिट्टी चो पैदा होए, खा पी लिया, परिवार का पालन पोषण कर लिया तो मिट्टी च चले गए, बल्कि जिंदगी इसलिए दी है कि मिट्टी जो पैदा होया है वो पैदा तो मिट्टी चो होया है, मूरत तो मिट्टी दी सी, पर दुनिया नू पता लग जावे कि मिट्टी के अंदर ही ये भगवान छुपिया सी, ये भगवान पैदा होया है, ये इंसान के अंदर ही भगवान है। पर इंसान चो भगवान प्रगट ऐसे नहीं हो जाना। एक बीज चो वृक्ष उदे नहीं पैदा हो जाता, बीज नू भी टुटना, उन्होंने हजारां मन मिट्टी के थले जाना पैंदा है, टुटना पैंदा है, फिर ही उहदे अंदरली ताकत बाहर। इसलिए जिन्ना इंसान के जीवन च प्रैशर पैंदा है ना, वो प्रैशर तो घबराओ ना, क्योंकि एक कोयले ते प्रैशर पैंदा तो उहदे अंदरों हीरा निकलता है। समझदे हो कि नहीं? इसी तरह
हुण समझ लो कि ये कुदरत ही आ, ये दुनिया प्रैशर पा रही है तो परमात्मा मौका दे रहा है कि मेरे वर्गे कोयले के अंदरों भी वो हीरा पैदा होवे कि जिहदी चमक दुनिया देखे। समझदे हो कि नहीं? इसलिए आ जाइए उस पॉइंट थे। यही गल कर रहे थे श्री गुरु रविदास जी के जीवन की, कि उन्होंने जीवन की बड़ी प्यारी घटना है कि एक बार एक नौजवान उन्होंने कोल चला गया तो गुरु अपनी मौत च बैठे हुए हैं। हुण उन्होंने कोल नौजवान ने जाके सवाल की किया कि महाराज ये जिंदगी की कीमत की है, ये जन्म की कीमत की है? तो हुण जरा गौर करना, ये साखी दे नाल जुड़िया 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 ना एक एक जिहड़ा पॉइंट है या एक एक गल है बड़ी समझण वाली है, ये साडे सारे जीवन नाल जुड़ी हुई है। इसलिए गौर करना, फिर असीं इहदी गहराई भी समझांगे कि जदों उसने श्री गुरु रविदास जी नूं पुछया महाराज जीवन की वैल्यू की है, ये जीवन की है? वैल्यू तो ऐसी कह रहे, उन्होंने पूछा कीमत की है। नहीं तो कई बार सुनने वाले कह लै भी उसले वैल्यू भी कहा जाता सी, ये वैल्यू तो इंग्लिश का शब्द है, तो इंग्लिश तो हुण बनी। इसलिए सानू थोड़ा क्लीयर करना पैंदा है, क्योंकि जिन्हां ने समझना कुछ नहीं हुंदा ना, सीखना कुछ नहीं हुंदा, बस वो गलतियां फड़नी बैठे रहंदे कि कित्थे किहड़ी गलती। समझदे हो कि नहीं? इस करके की पूछया उन्हें श्री गुरु रविदास जी नूं कि जीवन की कीमत की है, जीवन की है, इहदी कीमत की है? तो उस वेले श्री गुरु रविदास जी मुस्कुराए, कहते जीवन की कीमत समझना चाहता है, जानना चाहता है? कहता जी हाँ, मैनू पता लगना चाहिए जीवन की है, यदी वैल्यू कीमत की है जी। तो उसले श्री गुरु रविदास जी ने उन्होंने क्या बैठ कोल बिठाया, तो गुरुआं ने नज़र मारी जमीन की तरफ। हुण जदों जमीन की तरफ नज़र मारी तो सामने जमीन ते ना एक छोटा जिहा पत्थर पिया होया है, जिदा कहना कंकर पत्थर जमीन ते पे हुंदे, सामने एक छोटा जिहा पत्थर पिया होया है। श्री गुरु रविदास जी ने अगे होके वो छोटे जे पत्थर नूं अपने हत्थ च लिया, हत्थ च लैके मुट्ठी नूं बंद किया। हुण फिर कहांगे कि गुरु रहबर पीर फकीर जिहड़े हुंदे आ ना, इन्हां नूं कदी खाली हत्थ ना समझो, जिद्दां कई बार दसीदा ना, समझी खाली हत्थ फकरां दे, इन्हां हत्थां च बड़ी तसीर यारा, जद मत्थे ते हत्थ रख देण फकर बदल जांदी है लिखी तकदीर यारा, झोली अड्डी खड़े दर फकरां दे, कई बादशाह कई अमीर यारा, देख फकरां नूं अल्लाह दा दर्श पावे, फकर अल्लाह दी है तस्वीर यारा। कहंदे फकीरां दे दर्शन चों ही रब दा दीदार मिलदा है, क्योंकि वैसे तो रब निरंकार है, बोलो समझदे हो कि नहीं? ਉਹਦਾ कोई आकार नहीं है, पर फकीरां दे अंदर दी ही सानू रब दे नूर दी झलक मिलती है, गुरुआं रहबरां दे अंदरों ही सानू परमात्मा दा वो नूर नजर आता है। इसलिए हुण श्री गुरु रविदास जी ने उस साधारण पत्थर नूं अपने हाथ च लिया और मुट्ठी बंद कर ली, और मुट्ठी बंद की और अपनी मुट्ठी की तरफ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। फिर मुस्कुरांदियां होया उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली तो नौजवान ने देखा कि जदों हाथ 'च पत्थर गया सी कुछ होर सी, पर हुण जदों मुट्ठी खोली है इहदा तो रूप ही बदल गया, इहदा रंग ही बदल गया। उस वेले उन्होंने भी समझना आवे ये चीज़ है की, क्योंकि उन्हें कभी ऐसा पत्थर देखा ही नहीं सी। कंकर पत्थर तो बहुत देखे सी, जदों जमीन तो चुकिया उदों पता सी ये पत्थर है, पर हुण जदों गुरुआं दा स्पर्श मिलिया, गुरुआं दी मुट्ठी च आके हथ खोले तो फिर उन्होंने समझना आवे बन की गया है। पत्थर तो है पर की हो गया, उन्होंने समझना आवे। तो उन्हें क्या महाराज जी की एक साधारण पत्थर थी, हुण इहदा की बन गया, इहदा रंग ही बदल गया, इहदा रूप ही बदल गया। तो हुण इत्थे पहला कहानी नूं अगे लैके चलीए साखी नूं, पर इत्थे पहला पॉइंट एक इस साखी चों की पता लगता है कि जिस तरह श्री गुरु रविदास जी ने साधारण पत्थर नूं हत्थ च लिया, उन्हां दे हत्थ च आंदे ही वो साधारण पत्थर की काया कल्प हो गई, काया बदल गई, सिगा कुछ होर तो बन कुछ होर गया। इत्थों की पता लगता है कि ऐ प्यारे अगर तुम ही अपने जीवन नूं बदलना है तो गुरु दे हाथ नूं पकड़ लै, गुरु चरणां नाल जुड़ जा, क्योंकि गुरु चरणां नाल जुड़ के वो साधारण पत्थर भी लाल बन जाते हैं, उन्होंने जीवन च भी बदलाव आ जाता है। हुण एक बच्चा जदों तक स्कूल नहीं जाता, जरा गौर करना, इत्थे असीं ने इतिहास दे एक बहुत बड़े ऋषि होए, ऋषि प्रणीनी जी, महारिषि प्रणीनी। कहंदे बचपन दे विच ना वो बड़े मूर्ख सी,
ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਧੂ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ ਸਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਪਨੀਨੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਗਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ, ਗਿਆਨ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਤਾ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਪਨੀਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋਤਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਹਸਤ ਰੇਖਾ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤਿਸ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਪਨੀਨੀ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਬਾਲਕ ਮਹਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਰੇਖਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਰੇਖਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਪੱਖੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਣੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਵਰਸੇਬਲ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੇਖਾ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਪਨੀਨੀ ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ। ਬਾਪ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਚਤੁਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਭੋਲੇ ਪੰਜ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਤਕਸੀਮਾਂ ਜਰਵਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਭੋਲਾ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਦੌਲਤ ਅਰਬਾਂ ਦੀ। ਕਿ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਲੇਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਪਨੀਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਪ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗਾ ਹੱਥ 'ਚ ਵਿਦਿਆ ਦੀ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮਝ ਲਓ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੁੱਧੂ, ਨਾ ਸਮਝ, ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਬੱਚਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਾਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਰੇਖਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੋਲ ਹੀ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੱਕੜ ਖਿੱਚੀ ਔਰ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਕੜ ਖਬੋਈ ਔਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੀਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਆਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਿਸਜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਲਹੂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਚੀਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਦੇਵੇ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਨਾ ਸਮਝ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਲਗਨ, ਤੇਰਾ ਜਨੂਨ, ਤੇਰੀ ਜਿੱਦ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਫਿਰ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਪਨੀਨੀ ਨੇ ਕਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੱਥਰ ਹੀਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਨਾ ਸਮਝ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਓਏ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੇਖਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੁਆਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਰੇਖਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿੱਦ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ मेरा मालिक मेरे। इसलिए तूफानों की आदत है जहां बिजलियां गिराने की, तूफानों की आदत है जहां बिजलियां गिराने की, हमारी भी जिद है बेही आशियां बनाने की।
तूफान जिन्ने मर्जी आन, बिजलियां जिन्नियां मर्जी गिरन, बिजलियां तो डरना नहीं है, तूफाना तो डरना नहीं है, परवाह नहीं करनी दुनिया की कहती है। एक जिद पैदा करो, एक विश्वास पैदा करो कि दुनिया कहती नहीं हो सकता, इत्थे बिजलियां गिरदियां ते असीं इन्हां बिजलियां 'च ही अपना घर बना के दिखावांगे, इन्हां बिजलियां 'च ही, इन्हां तूफानां 'च ही अपनी मंजिल तक जाके दिखावांगे। क्योंकि साफ रास्ते तो हर कोई चल लेंदा है, बहादुर तो वह है जिहड़ा तूफानां दा सामना करके तूफानां नूं चीरदा होया मंजिल तक पहुंच के दिखावे। बहादुर बनो, अपने अंदरली कमजोरी नूं दूर करो, अपने अंदर ये डर शंका नूं दूर करो, अपने अंदर साहस नूं पैदा करो और जीवन च बदलाव लियाना है। तो सानू गुरु दे संग दी बड़ी, गुरु दे साथ दी बड़ी, क्योंकि गुरु चरणों नाल जुड़ के ही साडे जीवन च बदलाव आंदा है। एक बच्चा स्कूल जाता तो फिर ही वो अफसर बन के बहता है, तो जे स्कूल तक ना जावे तो फिर अनपढ़ता विच ही, अज्ञानता दे विच ही उहदी जिंदगी गुजर जाती है और वह मंजिलां नूं पा ही नहीं पाता जिहड़ियां मंजिलां वो पा सकदा सी। समझदे हो कि नहीं? इसलिए श्री गुरु रविदास जी ने पत्थर नूं उठाया, हथ च लिया, मुट्ठी बंद की, मुट्ठी खोली, वो पत्थर दा लाल बन गया। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखण मैं गई तो मैं भी हो गई। अज तुसीं भी लाल होके जाना है, समझदे हो कि नहीं? और ये लाली केड़ी है? ये इश्क दी लाली, ये विश्वास दी लाली, ये ओदी रहमत दी लाली साडे जीवन दे रोम रोम च रच जानी चाहिए है। क्योंकि लाली तो है, लाल भी है लाली भी है, बस रंगाण नूं तुसीं तैयार हो जाओ, फिर ही रंग चढ़ना है। समझदे हो? हुण श्री गुरु रविदास जी ने मुट्ठी खोली, नौजवान कहंदा जी ये की है? कहंदे बाद च दसांगे, पर लै इनू लैके जा, इनू लैके जा। तो सब तो पहला जिहड़ा इंसान मिले ना उन्होंने दिखा और पुछ दी कीमत की है, इनू खरीदना चाहता तू? और जो पुछे किन्ने दा, तो तू सिर्फ दो उंगलियां उठानियां, बोलना कुछ नहीं, तू सिर्फ उंगलियां दो उठानियां, बोलना पर देना नहीं है, पुछ के आ जाना वापस। हुण गुरुआं ने भेजिया, हुण जदों गया तो देखिया कि रेहड़ी वाला ना, यानी जिदा सब्जी आलू बेचने होंदे आ, इदां एक सब्जी वाला घूम रहा है, टोकरी दे विच सब्जियां रख के सिर ते, सब्जी लै लो, आलू लै लो, गोभी लै लो। वो कहते गुरुआं ने कहा सी जिहड़ा सब तो पहला इंसान मिले उन्होंने पुछनी है दी कीमत, ये खरीदना है, तो जे पूछे किन्ने दा, तो दो ही उंगलियां उठानियां है। उन्हें जाते ही वो फेरी वाले नूं रोक लिया और कहा कि भाई मेरे को कुछ है, खरीदना चाहता है? वो कहता दिखा। उन्हें मुट्ठी खोल के दिखाया तो देखा एक लाल जिहा चमकदार पत्थर है। वो कहता किन्ने दा? इन्हां दो उंगलियां कीतियां। वो कहता अच्छा दो आलू लै ला, दो आलू लै ला, क्योंकि आलू ही सी उहदे कोल, सब्जी सी उहदे कोल। कहता लै ला दो आलू, दे दे मैनू। तो वह समझ गया, कहता बस दो आलू। मन च सोचे गुरुआं दे हत्थां दी चीज़, बस दो आलू, इन्नी की कीमत है दी। वापस आ गया गुरुआं दे कोल। तो सतगुरु कहते हाँ भी की पता लगा, की कीमत मिली, किन्नी कीमत पाई इस पत्थर दी? वो कहता जी दो आलू। गुरु मुस्कुराए, कहते हुण इस तरह करना है, हुण इसे नगर च एक सुनार की दुकान है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ जाना है, पर ਉਹਨੂੰ भी कीमत दसनी नहीं है। जे पूछे किन्नी कीमत, तू उंगलियां खड़ियां करनियां है। हुण कहंदे उत्थे गया सुनार दे कोल। ਜਦੋਂ सुनार दे कोल गया, सुनार नूं दिखाया, तो सुनार नूं सोने चांदी का ज्ञान हुंदा है, ਉਹਨੂੰ भी लालां हीरियां मोतियां का ज्ञान नहीं हुंदा, क्योंकि लालां हीरा मोतियां का ज्ञान जोरी नूं हुंदा है। कहंदे उस वेले जदों सुनार दे मुरे पेश किया, सुनार ने कहा पत्थर तो बड़ा वधिया है, किन्नी कीमत है भी? क्योंकि जो कोई बेचता हो पुछीदा किन्नी कीमत, तू किन्ने दी देनी है? तो बोलिया कुछ नहीं, दो उंगलियां खड़ियां करतियां। जो दो उंगलियां खड़ियां कीतियां, सुनार ने कहा अच्छा 2000 रुपए, चल मैं 2000 देण नूं तैयार हाँ। जो इन्नी गल कही, वो बड़ा हैरान होया। वो फेरी वाला दो आलू, ये 2000, और उस वेले 2000 की बड़ी कीमत हुंदी सी। कहंदा 2000 रुपए पत्थर दे, इन्नी कीमत? दिल तो करता सी बेच देवां, क्योंकि पैसा आंदा किहनूं माड़ा लगता है, पर गुरुआं ने कहा सी बेचना नहीं है, पुछना ही है। फिर दोबारा गुरुआं को गया, बड़ा हैरान अचंभित होके। गुरु कहंदे की गल, बड़ा हैरान है, परेशान है, की गल? कहंदा सतगुरु ये पत्थर
2000 रुपए का विक रहा है, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ कीमत 2000 रुपया दसी उस सुनार ने। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਉਸ ਜੋਰੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਜੋਰੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਸ ਜੋਰੀ ਕੋਲ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਉਠਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਜੋਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਉਹਨੇ ਦੋ ਉਂਗਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਉਂਗਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ? 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗਸੀਆਂ ਪੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨ, ਕਿੱਥੇ 2 ਆਲੂ, ਕਿੱਥੇ 2000, ਕਿੱਥੇ 2 ਲੱਖ। ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕਿਆ, ਦੌੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੋਰੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਰੁਕ ਜਾ, ਜੇ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਹ 2 ਉਂਗਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, 2 ਹੋਰ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 2 ਹੋਰ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 4 ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜੋਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਲੱਖ, ਫੇ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਹੋਰ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ, 4 ਲੈ ਜਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੇ ਜਾ ਮੈਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਇਹ ਲਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋਰੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ 2 ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਬਸ ਜੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਆਲੂ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀਰੇ ਰੂਪੀ ਜਨਮ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਥੋੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ 2000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ 20000 ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀਰਾ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਜੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਭਤ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਭਤ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਵੈਲਿਊ ਘਟਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਓ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵੈਲਿਊ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁਕਮਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿੱਸਾ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਲੁਕਮਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਹਕੀਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਹਕੀਮ, 2 ਵੈਦ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇੱਕ ਲੁਕਮਾਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਵੈਦ ਆ ਧਨਵੰਤਰੀ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਿਆ। ਔਰ ਲੁਕਮਾਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਇਤ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਸੂਰਾ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਸੂਰਾ ਲੁਕਮਾਨ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਹੁਣ ਲੁਕਮਾਨ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਹਕੀਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਰਧ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜਾਨ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਨਸੀਹਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ, ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, उसने लुकमान हकीम ने की किया कि उम्र भर के तजुर्बे से एक बात समझ आई है कि बेटा पूछ रहे हैं तो सुन ले, उम्र भर के तजुर्बे से एक बात समझ आई है, यारी लगा फकीरों से जहां हर मर्ज की दवाई है। कहते हुण मैं तो जा रहा हाँ, पर हर मर्ज का इलाज अगर चाहता है ना, तो जारी लगा फकीरों से जहां हर मर्ज की दवाई है।
क्योंकि जिंदगी भर के तजुर्बे से यही बात समझ। हुण देख लो एडे वड्डे फकीर, एडे वड्डे लुकमान हकीम ने की कहता कि मैं पूरी जिंदगी का तजुर्बा देखिया कि जिहड़ा काम दवा दारू करते हैं, जड़ियां बूटियां करदियां है ना, वो काम फकीरां दे कोल बह के उन्हां दी नज़र, उन्हां दी रहमत भी कर जाती है। इसलिए अगर जीवन में कोई दर्द है, कोई मर्ज है, तो फकीरां दी सोबत जा, फकीरां दे कोल बैठ, क्योंकि हर मर्ज का इलाज नहीं मिलता दवा खाने में, कुछ दर्द मिट जाते हैं फकीरों के पास आने में। कि कई दर्द इदां दे हुंदे जिहड़े फकीरां दे कोल आने मिट जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा बेटा फकीरां दी सोबत जाया कर, फकीरां दी संगत च बैठिया कर। तो फिर बेटे ने दूजा सवाल पूछया कि पिता जी अब्बा जान फकीरां दी सोबत जाके की मिलेगा? तो लुकमान हकीम दे घर च ना एक टोकरी पई सी बैंत दी बनी हुई, कोलियां नाल भरी हुई। तो लुकमान ने कहा इदां कर, टोकरी नूं खाली कर, सारे कोयले थल्ले जमीन ते ढेर कर दे। सारे कोयले जमीन ते ढेर कीते, टोकरी चक्की। हुण जिहदे च कोयले रखे जाने वो टोकरी सी काली, क्योंकि कोयलियां दी कालक नाल हो गई काली। वो कहंदा पिता जी हुण की करना है? कहंदे कोल ही अपने घर दे नदी वगदी है, जा टोकरी च पानी लैके आ। वो कहंदा पिता जी बैंत दी टोकरी च पानी किद्दां आएगा, क्योंकि इस तां पानी ठहरेगा ही नहीं। वो कहंदे जा लैके तां आ जा। कहंदे टोकरी लैके गया, नदी च पाई। जदों तक नदी च सी पानी भरिया सी, पर जिद्दां ही नदी चों कड्ढी पानी सारा वग गया, टोकरी खाली हो गई। वापस आ गया, कहंदा पिता जी मैं कोशिश की सी भरन दी, पर टोकरी खाली है देखो। कहंदे जा दोबारा लैके आ। दूसरी बार गया, फिर टोकरी खाली लैके आ गया कि नदी च पान नाल जदों तक पानी च भरी नजर आती है, पर बाहर कढ़दे खाली हो जाती है। पिता जी अब्बा जान ये किहड़े कम्मां च पाता, ये टोकरी च पानी कित्थों आएगा? कहंदे जा फिर जा पानी लैके आ। तीसरी बार भेजिया, चौथी बार भेजिया, पंजवीं बार भेजिया, पर हर बार जदों खाली आया ना, तब छेवीं बार जान तो पहला कहंदा पिता जी मैनू समझ नहीं आ रही, मैं दसी जांदा है तुहानूं ये बैंत दी टोकरी च पानी नहीं आएगा, फिर क्यों बार बार मैनू तुसी नदी कोल भेजदे हो? तो उसले बाप ने कहा बेटा गौर कीता, बार बार नदी च जान नाल पानी बेशक घर तक नहीं आया, पर बार बार नदी च जान ना टोकरी दी सारी मैल उतर गई, टोकरी साफ हो गई है। कहते टोकरी नूं देख, इहदी सारी कालक। वो कहते इसी तरह फकीरां दी सोबत हुंदी है, जे बार बार जाइए घर ना भी कुछ लैके आइए, पर मन दी मैल, साडे जीवन दीयां बुराइयां वो जरूर दूर हो जांदियां, मन दी मैल साफ हो जाती है।